ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है बेंगलुरु में खेले जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के अंतर्गत आज हुई स्पर्धाओं पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम। This is All India Radio. We now bring you the highlights of the day's events at the Khelo India University Games being held in Bengaluru. खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 बेंगलुरु। Hello and welcome to the highlights of Day 4 of the Khelo India University Games 2021 being held in Bengaluru. Intense competitive spirit, teamwork and a clear strategy to win was on display at all venues of the Khelo India Games, which were literally overflowing with youthful energy and enthusiasm. These games have also provided a unique opportunity for youngsters to meet, compete and bond in what could result in lifelong friendships. The second edition of Khelo India University Games have indeed turned out to be a boon for athletes desperate for action during the pandemic. During the past few days, Bengaluru has seen such close contests, especially in team events like volleyball and basketball. 9 events were scheduled today. Hosts Jain University were at the top of the medals tally. Could they maintain their splendid performance? Let's find out. Freestyle and butterfly events were scheduled in swimming today. SB Vengatram reports from the pool side. On day 3 of swimming events at Aquatic Center of Jain Global Campus, Bengaluru, showcased 5 gold medal contests of 200 meters freestyle for men and women, 100 meters butterfly race for men and women, and the most colorful event of the day, 4 into 100 meters medley for women. Earlier in the day, Varsha V of University of Madras, Chennai, kept piling medals to her tally. She won her third gold of swimming competition in 200 meter freestyle, clocking 2 minutes 18.26 seconds. In a keenly contested photo finish event, Sadhvi Duri of Savitribai Phule Pune University had to contend with silver of the photo finish race, clocking 2 minutes 18.28 seconds. Preeta V of Bengaluru University the bronze. In the 200 meters freestyle event for men, Anurag Dhagar of Punjab University Chandigarh grabbed gold. In the evening, as the sun was going down on the horizon, golden hue in the background set the tone for 100 meter butterfly race for women. Shrishti Upadhyay of Jadavpur University, Kolkata, West Bengal gladdened the enthusiastic crowd with a gold winning performance. A gleaming Shrishti Upadhyay. मुकाबला सुबह 200 फ्लाई के बाद जो मुझे ब्रॉन्ज मिला था, उसके बाद मैंने सोच ही लिया था 100 फ्लाई में मुझे गोल्ड मिलना है और अपना बेस्ट देना है. In the men's 100 meter butterfly race, the local boy Shiva Sridhar of Jain University got a gold medal, pipping his close competitor Aryan Panchal of Gujarat University, Ahmedabad. Shiva Sridhar. I had the confidence, but today I would win. I didn't know. I just did the race and luckily I won the gold. Satisfied, it's a PB. I was aiming at a 55, but we'll have to wait for the next meet for that. But I'm satisfied, yeah. All eyes were on the last race of the day, 4 into 100 meter medley for women, with many fancy teams were ready to take the plunge for the coveted medal. University of Madras Chennai girls V. Varsha, Priyanka Pugalarasu, Madhumita Sriram and Yuvalakshmi Murugan Sridevi combined well to comfortably swim to grab gold with a timing of 4 minutes 57.17 seconds. A confident and giggling V. Varsha, who took her personal tally of medals to 5, which includes 4 gold and 1 silver. Yeah, it's always because of my hard work and the prayers of my parents. I really need to thank my dad, mom, grandma, grandpa. Especially I dedicate this to my sister because she's eagerly waiting and seeing my events. So I guess she's very happy today. This is Venkatram reporting for All India Radio from Aquatic Center, Jain Global Campus, Bengaluru. In shooting, mixed team air rifle events were scheduled. Sudhir Rajoria has the details. साई शूटिंग रेंज पर आज 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट के साथ साथ दोपहर बाद ट्रैप मिक्स्ड इवेंट के मुकाबले भी खेले गए और खिलाड़ी व्यक्तिगत की बजाय अपनी अपनी यूनिवर्सिटी के लिए मुकाबला करते नजर आए. 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय की रसिका कुलवे और गजानन खंडगड़े की जोड़ी ने मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर की मानिनी कौशिक और यशवर्धन की जोड़ी को 16-12 के स्कोर से मात देकर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया. बहुत अच्छा लग रहा है. कल जो हमारा मैच हुआ था उसमें हमने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते थे. गोल्ड की कमी थी तो आज हमने पूरी कर दी. अभी तो सुनहरे कलर पे निशाना लगाना है
और क्या तैयारी चल रही है उसके लिए? तैयारी तो पूरी चालू है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के लिए हम रेडी है। मेरी कल फाइनल थी बट वो अच्छी नहीं गई, सो आज पूरा कसर निकाल डाला है मैंने इस फाइनल पे। इट वाज नाइस, एक्सपीरियंस अच्छा था एंड आई एम फीलिंग गुड, वेरी वेरी गुड। मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर को आज रजत से ही संतोष करना पड़ा। यशवर्धन और मानिनी कौशिक। बहुत बारीकी का गेम होता है और थोड़ी सी भी हमारे सांस लेने में थोड़ी सी भी अगर चूक हो जाती है तो उतनी काफ़ी होती है आपको 2 पॉइंट पीछे करने से 2 पॉइंट आगे करने के लिए। जब इतनी बारीकी पे और इतने हाई लेवल पे गेम चलता है तब ये ऊपर नीचे चलता रहता है। पर हाँ, हमारी टीम में थोड़ा सा 1-2 पॉइंट का हमारी तरफ से चूक हुई जिसकी वजह से रजत पदक पर रहे हम। जब तक गोल्ड नहीं आता तब तक कोई सेटिस्फाई हो नहीं सकता है, बट स्टिल वी आर वेरी proud of ourselves that we have been given such a great platform for enhancing our performance and to really work upon ourselves. Actually, we both are part of Khelo India and Khelo India has been sponsoring us and looking after our accommodations and all the things. वहीं कांस्य पदक के लिए मुकाबला दिल्ली यूनिवर्सिटी और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बीच था, जहां दोनों ही टीमों ने जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। पर बाजी मारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के गुरमन सिंह और यामिनी ने, जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के समरवीर और राशि मित्तल की टीम को 17-15 से हराया। बहुत खुशी हो रही है और बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, कैसे प्रकट करूं बस समझ नहीं पा रहा। एक्साइटमेंट तो उस वक्त हो रही थी जब दोनों बराबर चल रहे थे, और कैसे आपने अपने ऊपर कंट्रोल रखा जब नेक एंड नेक फाइट चल रही? उस टाइम एक तो ऊपर वाले पे प्रे की और दूसरा डीप ब्रीथ ली, कंट्रोल किया और शॉट चलाया। डू और डाई सिचुएशन थी कि अब करना है तो ठीक है आ जाएगा, वरना वैसे यूजुअली है कि डीप ब्रीथ लेके कंट्रोल करके सब कुछ भूल के कि मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा क्या करना है, सिर्फ नॉर्मल अपने जो नेचुरल हम शॉट चलाते हैं वैसे चलाना है। इसके बाद आरंभ हुए ट्रैप मुकाबले। मिक्स्ड टीम मुकाबलों में क्ले पिजन को अपनी गोलियों से चकनाचूर करने के लिए 4 टीमें फाइनल में थीं, मगर स्वर्ण पदक हाथ आया मानव रचना यूनिवर्सिटी की विधि सिंह और विश्व कुंडू के हाथ। डेफिनेटली बहुत अच्छी फीलिंग है एंड कंपटीशन भी इट वाज रियली गुड, एवरीथिंग वाज प्रॉपर्ली मैनेज्ड एंड यहाँ का एम्बियंस वाज प्रॉपर्ली लाइक एक कंपटीशन वाला माहौल था एंड दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द मेन रीज़न कि आप अगर उस जोन में रहते हो सो यू प्ले बेटर। So I want to thank to all the sponsors and Government of India for this amazing competition. It was really difficult. It was neck to neck competition, but somehow we managed and after that we are very happy and we will achieve more. दिल्ली यूनिवर्सिटी के कबीर शर्मा और आद्या त्रिपाठी की जोड़ी को रजत पदक मिला और वहीं कांस्य पदक हाथ आया गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की जोड़ी, जिसमें नीरू ढांडा और अनवर थे। मैं सुधीर राजौरिया, साई शूटिंग रेंज, बेंगलुरु से। In badminton, gold medal events were scheduled on the final day. Nitish Arora from the Jain Global University Arena. It was a completely surcharged atmosphere at the badminton arena, and why not? It was the finals of badminton and both boys and girls team of the host university, the Jain University, were playing for the gold. The first match was a little dampener as their champion player M. Raghu lost to Ritvik Satish Kumar Sanjeevi of SRM Institute of Science and Technology, Chennai. In the second singles, Rohit M. of Jain University also lost the match. From there, Jain University made a remarkable comeback. In the first doubles match, Raghu Marisaram and Sai Pratik won the match. Final match for the host team, Rohit M paired with Suhas V, and Jain University team won the match. What a day it was for the Jain University. The women, they defeated Madurai Kamaraj University, Tamil Nadu 3-0. In the first singles, Tanya Hemant defeated Akshay Armugam. Janani Anantakumar and Dhriti Yatish defeated Arul Bala Radhakrishnan and Varshini Vishwanathan Shri in the doubles, and then Dhriti Yatish finished the formalities by beating Varshini Vishwanath Shri to win the gold for Jain University. Hi, I'm Sheetal. I'm feeling really happy. The team played really well, so we're all happy. Hi, I'm Ananya Praveen. It's been a really wonderful ride till now and we are very, very glad that we have got to win the medal. Hi, I'm Dhriti Yatish and I'm very happy for the team because it was a great team effort. Hi, I'm Janani Anant Kumar and really proud of ourselves because we won the gold. Hi, I'm Tanya Hemant and I guess we played amazing today, all of us, and it was amazing teamwork and team effort. Thus, the silver went to Madurai Kamaraj University and bronze medal went to the SRM Institute of Science and Technology, Chennai. This is Nitish Arora reporting from the badminton arena.
Basketball witnessed some of the most exciting and intense duels and close fights. All the 4 semi-finals were played today and Anupam Pathak gives us a feel of the atmosphere. बास्केटबॉल में 5 दिनों तक चली स्पर्धा का आज अंतिम दिन था। सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले खेले गए, लेकिन पूरे टूर्नामेंट का शिखर रहा लड़कों का फाइनल मैच पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ और जामिया मिलिया इस्लामिया के बीच। दोनों ही टीमों ने सुबह कड़े मैच खेले थे, लेकिन उसकी थकान को पीछे छोड़ एक जबरदस्त, सचमुच जबरदस्त बास्केटबॉल का मैच देखने को मिला। पहले क्वार्टर में पंजाब जामिया से 14-27 से पिछड़ गया, लेकिन दूसरे में वापसी की। हालांकि खेल की समाप्ति के 6 मिनट पहले तक पीछे ही रहा। 6 मिनट पहले पहली बार बराबरी पर आया और उसके बाद एक अंक के लिए सचमुच गला काट संघर्ष। अंतिम मिनट में 83 पर बराबर। 30 सेकंड पहले पंजाब फिर 1 अंक से पीछे, 10 सेकंड पहले भी 1 अंक से पीछे, लेकिन फिर नाजुक क्षणों में उनका अनुभव और मारक रणनीति काम कर गई। 6 सेकंड पहले लीड ले ली उन्होंने और 85-84 से इस मैच को जीतकर स्वर्ण पदक हासिल कर लिया। पंजाब के कप्तान शुभम ऋषि: सर हमें पता था हमने जीतना है सर, वी विल विन। और सर हमने अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखा शुरू से। हमें पता था हमारे टीम में वो पोटेंशियल है कि हम गोल्ड लाएंगे और सर हमने प्रूव किया। सिर्फ 7 सेकंड बचे थे जिस समय, उस समय क्या स्ट्रेटेजी, क्या सोच रहे थे? सर हमें पता हमारे पास एक अच्छा कोच है और अच्छा कोच हमेशा एक अच्छी परफॉर्मेंस हमें देगा ही। उसने अच्छा प्लान बनवाया और जिससे हमारा एक जो मेन प्लेयर है अरविंदर फ्री हुआ और बास्केट स्कोर की। सर जामिया मिलिया इस्लामिया के कप्तान मानिक: हमने अपना बेस्ट भी दिया कोर्ट पे, बट वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। उस वजह से पंजाब की टीम के प्लेयर को एक फ्री ओपन शॉट मिल गया। यही था लास्ट में, हम सब यही सोच रहे थे कि किसी तरह गेम निकल जाए, हम जीत जाएं। पुरुषों में भले ही गत विजेता मद्रास विश्वविद्यालय को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा, लेकिन लड़कियों में गत विजेता इसी विश्वविद्यालय ने शानदार खेल दिखाकर अपने शहर के ही दूसरे विश्वविद्यालय एसआरएम को 65-48 से आसानी से परास्त कर दिया। सधी हुई शुरुआत की और शूटर्स कप्तान ऐश्वर्या, मोनिका और बाला के दम पर पहले क्वार्टर में ही 21-15 की बढ़त ले ली। दूसरे में एसआरएम ने वापसी की, लेकिन उसके बाद मद्रास विश्वविद्यालय ने अगले दोनों क्वार्टर्स में अपनी बादशाहत फिर से कायम कर ली। मद्रास विश्वविद्यालय की जे ऐश्वर्या की कप्तानी में लगातार दूसरा स्वर्ण पदक। Same team, 1 or 2 girls were missing, but we are same team and we did again. You were leading in first quarter, then second quarter suddenly they surged ahead. Yes, not mindset is ready. After that, third, fourth quarter, we encouraged together and we did it. एसआरएम विश्वविद्यालय हारा जरूर, लेकिन मायूस नहीं। उनकी कप्तान केबी हर्षिता: मैंने दिया मेरा 100% दिया, फिर भी ये टीम गेम है, मतलब अकेली नहीं खेल सकती हो। हाँ, पहली बार आई है एसआरएम यूनिवर्सिटी, तो वी गॉट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, लॉट ऑफ लेसन्स बाय प्लेइंग दिस टूर्नामेंट। श्री कंठीरवा स्टेडियम से मैं अनुपम पाठक। And Maria stole the show at the weightlifting arena where Olympians are born. SB Venkatram has more on the heavyweight contests. Weightlifting event at Sprintour Stadium came to an end with 2 gold medals contest in 87 kg women and 109 kg men's section. The first contest of 87 kg women gold medal match witnessed Anne Maria of Mangaluru University, Karnataka, literally sweeping away the gold medal effortlessly as she lifted total weight of 230 kg with a comfortable lead of 41 kg ahead of her closest rival, silver medalist T. Satyajyoti of Acharya Nagarjuna University, Guntur. Bronze medal went to Muskan Singh of Kurukshetra University, Haryana. Maria, the gold medalist, who exuded confidence much before the competitions started. All India met you on the day 1 and you said your opponents should have fear in you and you proved it today. हाँ सर। बहुत से ऐसे कंपेटिटर्स हैं जो आपके साथ compete कर रहे हैं, अगर वो सुन रहे हैं तो उनको क्या कहना चाहोगे? डरना चाहिए, डरना चाहिए बस। After the gold medal win, Maria shares how she took up weightlifting as her sport. 10th क्लास में पढ़ाई करने में मम्मी ने थोड़ा पतला होने के लिए वेट लिफ्ट में डाल दिया, थोड़ा सा पतला होने के लिए। फिर ऐसे इंटरेस्ट आ गया कंपटीशन, जाके इंडियन कैंप के लिए बुलाया। कैंप में जाना है, उधर एशियन गेम्स का ट्रायल्स है, फिर एशियन गेम्स खेलना चाहिए। ऐसे इंडिया में बेटर परफॉर्मेंस देना चाहिए। The last of the gold medal contest saw Rudra Mayan of Manon Maniam Sundaranar University, Tirunelveli, Tamil Nadu, outclassing the local favorite Kushal Gowda of Jain University, Bengaluru by a total lift of 326 kgs in the men's 109 kg weightlifting event. Rudra Mayan speaking to All India Radio.
इंडियन नेशनल कैंपर है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, फर्स्ट टाइम में आए मैं गोल्ड करना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स से गोल्ड मेडल है, पुणे एंड कलकत्ता गोल्ड मेडल आएगा, नेशनल में 3 टाइम के मैं गोल्ड मेडल आएगा। मैं डेली का सुबह 2 बजे प्रैक्टिस करना, शाम को 2 बजे प्रैक्टिस करना, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे का 2 टाइम प्रैक्टिस करना, थर्सडे सैटरडे का 1 टाइम प्रैक्टिस करना, ऐसे बस मेरे टारगेट का ओलंपिक मेडल आएगा सर। Overall, the team championship for men went to Savitribai Phule, Pune University, who stood first with 127 points, followed by Kaviyatri Bahinabai Chaudhary, North Maharashtra University, Jalgaon with 78 points, and Acharya Nagarjuna University, Guntur with 70 points. The overall team championship for women went to Kalinga Institute of Industrial Technology, Bhubaneswar with 139 points, followed second by University of Calicut with 117 points, and the third place of team championship went to Chandigarh University, Mohali with 111 points. Even as the curtain went down on weightlifting events, All India Radio spoke to veteran stalwart Dronacharya Awardee for weightlifting, Paul Sandhu. मैं इस गेम से 60 ईयर से जुड़ा हूँ, 1960 से। मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ, वैसे आई मे नॉट बी सपोर्टिंग एनी पार्टी, बट ये जो इस गवर्नमेंट की और एट प्रेजेंट जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स हैं, उनकी ये जो पॉलिसी है टू एनकरेज यंगस्टर्स टू कर ये खेलो इंडिया वगैरह, जहाँ इवन फेडरेशन को जो ग्रांट अभी उन्होंने काफी इंक्रीज किया है टू ऑर्गेनाइज द नेशनल चैंपियनशिप, ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है और इससे जो स्पोर्ट्स है इंडिया में वो जरूर इम्प्रूव होगा। This is Venkatram reporting from Sprintour Stadium, Jain Global Campus for All India Radio. The Khelo India University Games have been declared Green Games. Anupam Pathak dwells on the significance of this initiative. कोई भाषा हो, कोई अभिव्यक्ति हो, प्रकृति के प्रेम से भरी पड़ी है। इसी वसुंधरा के बच्चे तो हैं हम सब। प्रकृति की गोद में अनादिकाल से अटखेलियां करते। कभी कभी मन में ये सवाल जरूर कौंधता होगा, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। लेकिन जरा ये सोचिए, चित्रकार की इस अनूठी कृति को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी, भला और किसकी? और हमने पर्यावरण के साथ इतना क्रूर व्यवहार किया है कि प्रकृति तो करा ही हमारा अपना भविष्य भी हमने अंधकार की ओर ढकेल दिया है। इस अंधियारे में उजाले की एक किरण है पर्यावरण संरक्षण, प्रकृति की ओर वापस लौटने की मुहिम। और ये मुहिम अब है युवाओं के हाथ में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 पूरी तरह ग्रीन गेम्स हैं, प्रदूषण प्लास्टिक रहित। मेजबान जैन यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर राज सिंह कहते हैं, बहुत ही हरा भरा कैंपस हमने इसको मेंटेन करने की कोशिश की। कंस्ट्रक्शन में भी ध्यान रखा गया है कि हरियाली को नुकसान ना दिया जाए। प्लास्टिक के कोई भी बॉटल्स हैं या कोई भी बर्तन है वो यूज नहीं किए जाएंगे। वातावरण को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, हर चीज का इसमें ध्यान रखा गया है। ग्रीन गेम्स की महत्ता इतनी है कि उपराष्ट्रपति माननीय वेंकैया नायडू महोदय ने अपने संदेश में भी इसका विशेष जिक्र किया था। I'm happy that the Khelo India University Games 2021 have been declared as the first ever green games, under which all efforts are being made to use non-plastic and reusable recycling material. It is indeed commendable. मिलिए गुजरात से आई मानसी से। We are not using that much of the paper and plastic. We are go through for the emails and WhatsApp and was the social media style. The youth are going for that. They are using the digital things. They are guiding the other people. और अगर युवाओं ने ठान लिया कि जीवन हरित होना है तो यकीन मानिए हो के रहेगा।
Football events concluded today. Nitish Arora has more on the final day's clashes. In the first encounter of the day, University of Calcutta overcame Admas University by 2 goals to 1. We were present to witness both the matches of Group B that were played. The first match was clinched by Mahatma Gandhi University, Kottayam, defeating Punjab University, Chandigarh by 3 goals to 1. Giving them second win in as many matches in their group. Thus, moving on to the next round. We spoke to the goal scorer. I am Bipin Bogan, MG University, Kottayam, Kerala. We are very happy to win the second game of the tournament. So this Kelo India is giving a really good opportunity for the youngsters to perform in a big stage. So the telecast, everything, facilities in the JN campus, excellent. So we are taking one game at a time and we are moving forward to the next game. We always play for the final, so we are playing a good brand of football. Unfortunately, we lost in the All India University in the semi-finals, but we are looking forward to get the trophy in the Kelo India. I think Calicut University is going to give us a tough fight if we are expected to play them in the semis or in the finals. In the second match at this venue, Sant Baba Bhag Singh University lost 3-0 to Punjabi University Patiala. The victory cheered by the winning team. We spoke to the captain Bhupinder Singh of the team. हमारे प्लेयर बहुत ही अच्छा खेले, जो लगाया सभी ने अपना 100% दिया, तो हमें विक्ट्री मिली। मैं आगे भी यही आस रखूंगा अपनी टीम के। बस कुछ नहीं, मन में कोई जीत हार का डर नहीं था, बस जोर लगाकर मैच खेलने के लिए हम तो एंजॉय करने आए थे और एंजॉय भी किया, जीते भी। More matches from football turf in coming days for you all. This is Nitish Arora signing off for today. On to boxing now, where tough, exciting contests kept spectators on the edge of their seats. Shahid Anwar tells us who landed all the punches. बढ़िया फुटवर्क और दनादन मुक्कों की बौछार से जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु के बॉक्सिंग एरिना में युवा उत्साह और जीत का शोर उभर कर चारों तरफ फैल रहा है। कल महिला वर्ग में सेमीफाइनल मैच हुए तो आज पुरुष वर्ग में रोमांचक मुकाबले संपन्न हुए। मुक्केबाजी में आज कुल 26 बाउट्स के दौरान कल के फाइनल्स के लिए जबरदस्त भिड़ंत हुई। आज मुकाबला जीता तो कल स्वर्ण पर कब्जा हो सकता है। फाइनलिस्टों की स्ट्रेटजी बन रही है। कुछ विजेताओं से हमारी बातें होती हैं। 46 किलो वेट कैटेगरी के फाइनल में पहुंच चुके पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी के कृष्ण ठाकरान कल स्वर्ण पदक जीतना चाहते हैं। पसीने से तरबतर कहते हैं, सर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में सेमीफाइनल पहुंचा था, यहाँ मैं फाइनल तक पहुंचा हूँ। मैं अपना बेस्ट दूंगा यहाँ पर और चैंपियन बनना है। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर और कोच भूषण सैनी को स्वर्ण पदक की आशा है। प्रैक्टिस हमने बहुत अच्छी करवाई है, इसकी तैयारी अब की बार अच्छी है काफी, तो हम गोल्ड के सोच रहे हैं, गोल्ड की दावेदारी हमारी है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्पर्श कुमार 48 वेट कैटेगरी में स्वर्ण पदक को स्पर्श करना चाहते हैं। इसके साथ मेरा पहले भी हो रखा है, इसलिए मैं क्लियर था कि मैं हरा दूंगा इसको, पर 3-2 का डिसीजन आया, इतना मैंने सोचा नहीं था। मेरे को लगा 5-0 का आएगा। फाइनल बाउट है कल, उसके लिए प्रिपेयर करना है। हेलो, माई सेल्फ शमी नेगी, मैं एज ए बॉक्सिंग कोच हूँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। ये मेरा ही स्टूडेंट है, इसकी बेस्ट अचीवमेंट है, ये 2 टाइम इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है। फर्स्ट यूनिवर्सिटी गेम्स में इसकी इंजरी के कारण खेल नहीं पाया, अभी बेस्ट करेगा और कल मे भी होप ये गोल्ड लेके जाएगा। सर मेरा नाम नितिन कुमार है और मैं 92 वेट कैटेगरी में खेलता हूँ, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरफ से, मोहाली की तरफ से। इससे पहले जो कंपटीशन हुआ था ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी, उसमें ही मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया था और हमारी कोच की मेहनत और हमारी मेहनत बिल्कुल काम आएगी और हम कल गोल्ड के साथ यहाँ से जाएंगे। सर करमवीर सिंह, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बॉक्सिंग कोच है। मेरे लिए और मेरी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत खुशी की बात है सर। कल के लिए अपोनेंट का गेम देखेंगे, उसके हिसाब से प्लानिंग करेंगे, डिफेंस स्टार्ट करना है, अटैक से करना है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के 5 मुक्केबाज 46, 63, 67, 71 और 92 किलो भार वर्ग में फाइनल में अपनी जगह बना चुके हैं। 92 किलो भार वर्ग में अनमोल ने भी जगह बनाई है, वो बताते हैं। पर हमारी लड़कियां लॉस हो चुकी है सारी। हमारी गर्ल्स में ट्रॉफी थी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में, पर हम बॉयज में चेंज करेंगे उसको, कहीं ना कहीं तो हम जरूर जीतेंगे। कल सर एक्चुअली मेरी फाइट हो चुकी है उनके साथ, पहले प्लानिंग कभी बताते नहीं सर, वो रिंग में दिखाते हैं। आई विल शो यू इन रिंग। गोल्ड ही चाहिए, विदाउट गोल्ड देयर इज नो मेडल आई थिंक। मेरा नाम गौरव दत्त है, मैं हरियाणा से हूँ, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। मैं 92+ kg में हूँ। कैसा लग रहा है जीत के? बहुत अच्छा, और मैं गोल्ड लेके जाऊँगा यहाँ से, तो अच्छी तैयारी कर रखी है। मेरा नाम सावन गिल है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से, और सुपर हैवी वेट डिवीजन में 92+ में। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस फाइट के लिए, आगे के लिए बढ़िया तैयारी रहेगी। फाइनल के लिए
थोड़ा स्पीड से खेलना पड़ेगा, जैसे आज थोड़ी बॉडी स्लो थी तो फाइनल में थोड़ा स्पीड दिखानी पड़ेगी तब जाके बात बनेगी। पंजाब यूनिवर्सिटी की कोच कहती हैं, मेरा नाम जगदीप कौर है, लेटेस्ट बॉक्सिंग कोच हूँ अभी क्वालिफाइड, एंड परफॉर्मेंस हमारा बढ़िया चल रहा है। हमारे 3 बॉक्सर्स फाइनल में हैं और अभी सावन है जो हमारा, ही इज डूइंग ग्रेट एंड होप सो वी आर गोइंग टू गिव मेडल, गोल्ड मेडल। इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 200 बॉक्सर हिस्सा ले रहे हैं और सभी अच्छे हैं। बॉक्सिंग के कंपटीशन मैनेजर नीरज भट्ट कहते हैं कि कांटे की टक्कर चल रही है। जो भी यूनिवर्सिटी में जिन्होंने क्वार्टर फाइनल तक आए हैं वो सब यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक वेट में 8 बॉक्सर हमारे इसमें खेल रहे हैं और अच्छी बाउट चल रही है, बहुत टफ बाउट चल रही है। कई डिवीजन हमारे 3-2 बराबर के जा रहे हैं। बॉक्सिंग एरिना जैन यूनिवर्सिटी से मैं शाहिद अनवर। On to tennis now. Nitish Arora has the details of today's matches. From the tennis court today, Kaling Institute of Industrial Technology defeated Maharshi Dayanand University by a margin of 2-1. In the men's category, Group D, Shri Venkateshwar University defeated Chaudhary Charan Singh University by a margin of 2-1. And in the women's category, Group A, Osmania University defeated Jadhavpur University by a margin of 3-0. In men's Group C, SRM University defeated Savitribai Phule University Pune by 3-0. For women's Group C, Jain University Bangalore defeated Punjabi University by 2-1. And in another match for women in Group A, Savitribai Phule University defeated Punjab University by 2-1. With more actions to follow from the tennis courts in the days to come, this is Nitish Arora signing off for All India Radio. Archery qualification began today at the Jain Global University. Shahid Anwar sums up today's events. खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में आज से तीरंदाजी की स्पर्धाएं शुरू हो गयी। इस तीरंदाजी स्पर्धा में कुल 160 यूनिवर्सिटी के युवा तीरंदाज हिस्सा ले रहे हैं। 40-40 रिकर्व पुरुष महिला और इतने ही कंपाउंड में आर्चर्स निशाना साधेंगे। आज क्वालिफिकेशन राउंड संपन्न हुआ। कल से कंपाउंड के एलिमिनेशन राउंड होंगे। भारतीय तीरंदाजी टीम की कोच रही द्रोणाचार्य पूर्णिमा महतो इस आयोजन से बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा लग रहा है एंड काफ़ी नए बच्चे आ रहे हैं और ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो खेलो इंडिया ने शुरू किया है। यूनिवर्सिटी बच्चे लोग का टूर्नामेंट का एक एक्सपीरियंस रहेगा और ये टूर्नामेंट भी बहुत अच्छी तरह से होता है। मतलब अभी जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी होता है उससे बेटर है ये, फिर इससे ही आगे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो अच्छा एक्सपीरियंस है एंड अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो रहा है। मेरा नाम राहुल बनर्जी, मैं अर्जुन अवार्डी ओलंपियन, कॉमनवेल्थ गेम गोल्ड मेडलिस्ट, एशियन गेम्स मेडलिस्ट और वर्ल्ड कप मल्टीपल मेडलिस्ट, वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट। पहली बार मैं आया हूँ खेलो इंडिया कोई टूर्नामेंट में और ये नॉट लेस देन एनी इंटरनेशनल टूर्नामेंट हम लोग इतना गेम्स खेले हैं। मतलब बाहर भी जब हम लोग गेट से एंट्री किए वहाँ से लेके आर्चरी ग्राउंड तक, मैं बाकी लोगों से भी ना बाकी जो स्पोर्ट्स है वो भी एकदम इंटरनेशनल लेवल उसको लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मुझे लगता है इससे हम लोग का और अच्छा तैयारी होगा इंडिया के लिए और हम लोग आने वाले 2024, 28 और मे बी यहाँ से जो निकलेंगे 32 तो उसके लिए हम लोग को और अच्छा एक बूस्ट मिल रहा है बच्चों को। जैन यूनिवर्सिटी आर्चरी रेंज से मैं शाहिद अनवर। Now on to the medals tally. Jain University is at the top with 11 gold, 4 silver and 2 bronze medals. A total of 17 medals, followed by Punjab University with 6 gold, 4 silver and 5 bronze. Savitribai Phule Pune University with 5 gold, 6 silver and 7 bronze. And the University of Madras in the 4th position with 5 gold medals. Do tune in to All India Radio at 10 p.m. for daily highlights of the second Khelo India University Games from Bengaluru. All India Radio brings you the best from the world of sport. Khelo India, Khelo India, Khelo India University Games 2021 Bengaluru. Assistants in production, Anupam Pathak. Technical assistants, Wilson Francis. Script and narration by V. Shivakumar and produced by Mahendra Singh Lalas.
You were listening to the highlights of the day's events at the Khelo India University Games 2021 being held in Bengaluru. This program was produced by the Central Production Team of All India Radio in Bengaluru. अभी आप सुन रहे थे बेंगलुरु में खेले जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के अंतर्गत आज हुई स्पर्धाओं पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम बेंगलुरु स्थित आकाशवाणी के केंद्रीय प्रस्तुति दल द्वारा तैयार किया गया।